Okay, so till now we have completed indefinites, continuous, and perfect. So today we are going to talk about the last portion related to tense. That is number 10, present perfect continuous. Number 11, past perfect continuous. And the last one, number 12, future perfect continuous. We need to understand two things. The first one is I stands for identification, and then R stands for rule. So as per the 4-line structure, we have already completed the rules. लेकिन पहले यह नोट डाउन कर लो, उसके बाद में रूल्स के बारे में पहले बात करूंगा, क्योंकि रूल्स तुम लोग खुद बना सकते हो. जो भी 4-line स्ट्रक्चर समझ गए हो, रूल्स खुद बना सकते हो. बस अपने लैंग्वेज में कंसेप्ट को समझना मेन चीज होता है. पहले ये लिख लो. Completed? Yes, sir. So if we talk about rules, so perfect means have verb, continuous means be verb. Perfect means have and continuous means be. So subject plus small verb. Perfect means have verb, so present perfect has a past perfect had, simply. So present perfect has have as small verb, present perfect completed. Continuous, present perfect. Continuous means be verb. Now be, been or being. Been. Why? Been is the third form. After have, only third form is allowed. So been, now completed, present perfect, continuous completed. Now main verb should be given. So after be, ing form should be used. MV1 plus ing. जिसने भी 4 लाइन के स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिए उसको आराम से समझ में आएगा. यह रूल रटना नहीं है, बस सिस्टम को समझ के खुद से बनाना है. ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स विल बी देयर एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस. In the same way, if we talk about past perfect continuous, so make the rule subject plus small verb. Past perfect means had, continuous means be form, the third form of be means been, and then main verb is to be used. So after be, in active only ing form is allowed. MV1 plus ing completed. Then at last object plus other words as usual it will be used. And the last one is combination of 3 tenses: future, perfect, continuous. So subject plus small verb. Future means shall, will. Future. Perfect. Perfect. So first form, because after modals only first form is allowed. So have, had, having. So first form will be used have. Future perfect. Then continuous means be verb. After have we are using, so third form of be, been. Future perfect continuous completed. Now main verb should be used. After be verb means ing form. And at last as usual object plus other words. देख लो, कहीं भी रूल रटना नहीं है, रूल को बनाना सीखो. अगर लैंग्वेज अच्छा करना है तो सबसे पहले 3 इंडेफिनिट्स कंप्लीट करके बोलना सीखो. एक बार बोलना क्लियर हो गया, उसके बाद 4 लाइन का स्ट्रक्चर समझ जाओ अच्छे से, और पूरे लाइफ में उसी 4 लाइन स्ट्रक्चर के हिसाब से तुम्हारा रूल्स रेगुलेशंस बनेगा. नाउ we have understood that yes, the rules and regulations are easy. Whatever we have completed 4-line structure, according to that we can easily make the rules. हम लोग आराम से बना सकते हैं. लेकिन अगर अपने लैंग्वेज में कंसेप्ट नहीं समझोगे कि भाई ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे का, अगर कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है, बी श्योर यू आर नॉट गोइंग टू यूज सच टेंसेस.
तो कंसेप्ट क्लियर करना है अपने लैंग्वेज में, इसको यूज कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैं एकदम सिंपल सिस्टम बतला रहा हूं। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है भाई, अगर यह तीनों से परफेक्ट को अगर हटा दो तो क्या बचेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या बचेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से परफेक्ट को हटा दो तो क्या बचेगा जी, पास्ट कंटिन्यूअस। और उसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस से परफेक्ट को अगर रिमूव कर दो तो क्या बचेगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब अच्छे से समझो यह परफेक्ट क्या है। परफेक्ट इंडिकेट्स अ परफेक्ट टाइम ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द वर्ब। मतलब कोई भी काम कंटिन्यू चल रहा है, चल रहा था, चल रहा होगा। तो अगर कंटिन्यू चल रहा है, चल रहा था, कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट हुआ होगा। तो वह कब से स्टार्ट हुआ, कितने समय से स्टार्ट हुआ। अगर उस काम के अगर कंटिन्यू चल रहा है, चल रहा था, अगर उसका स्टार्टिंग अगर कब से स्टार्ट हुआ, कितने समय से चल रहा है, अगर एक परफेक्ट टाइम अगर ऐड कर दो, सो ऑटोमेटिकली continuous will be converted into perfect continuous। अगर इसमें एक टाइम जोड़ दो, भाई कितने समय से, कब से, एक परफेक्ट टाइम अगर जोड़ दो, so automatically continuous will be converted into perfect continuous, means present continuous will be converted into present perfect continuous, past continuous will be converted into past perfect continuous, and future continuous will be converted into future perfect continuous। वे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, तारा फुटबॉल खेल छे। वे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। अगर वे लोग अभी फुटबॉल खेल रहे हैं, खेलने का काम कभी ना कभी तो स्टार्ट हुआ होगा। तो अगर कोई टाइम बोल दो, वे लोग सुबह से फुटबॉल खेल रहे हैं, वे लोग 7 बजे से फुटबॉल खेल रहे हैं, वे लोग 2 दिनों से फुटबॉल खेल रहे हैं, वे लोग 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हैं, then continuous will be converted into perfect continuous, means they are playing football, they are playing football। लेकिन अगर स्टार्टिंग का कुछ टाइम जोड़ दिए, भाई कब से, कितने समय से, कब से, अगर स्टार्टिंग का कोई टाइम जोड़ दिए, then is rm के जगह has been, have been plus ing। they are playing football, they have been playing। अब से के लिए क्या देंगे, थोड़ी देर बाद बात करेंगे। फोर और सिंस इज यूज्ड, कब कहां देंगे, थोड़ी देर बाद बात करेंगे। लेकिन पहले अच्छे से समझ लो, तारा फुटबॉल खेल छे, কত টাইম ধরে বা কত টাইম থেকে তারা ফুটবল 2 ঘন্টা ধরে খেলছে, তারা ফুটবল 7টা থেকে খেলছে, তারা ফুটবল সকালবেলা থেকে খেলছে। মানে একটা স্টার্টিং টাইম, পারফেক্ট একটা টাইম দিতে হবে, কত টাইম থেকে কাজ চলছে বা কখন থেকে স্টার্ট হয়েছে। हिंदी या उर्दू में इसको बोलते हैं से। कब से, सुबह से, 7 बजे से, 2 घंटे से, आधे घंटे से, 10 मिनट से, कब से। हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वी आर लर्निंग इंग्लिश। लेकिन अगर सीख रहे हो तो अगर 7 बजे से बोलोगे, हम लोग 7 बजे से इंग्लिश सीख रहे हैं, वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। सिंस या फिर क्या होगा थोड़ी देर बाद, वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, वी आर लर्निंग इंग्लिश की जगह पर वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। हम लोग 10 मिनट से इंग्लिश सीख रहे हैं, वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। हम लोग 4 महीने से इंग्लिश सीख रहे हैं, वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। लेकिन केवल बोलोगे हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वी हैव बीन लर्निंग, वी आर लर्निंग इंग्लिश। কিন্তু যদি টাইম দিয়ে দিচ্ছ কখন থেকে লার্নিং যদি করছি, কখন থেকে, যখন পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস, দেন কন্টিনিউয়াস উইল বি কনভার্টেড ইনটু পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। यस, সেরকমই পাস্ট কন্টিনিউয়াস যে আছে, তারা ফুটবল খেলছিল, তারা সকালবেলা থেকে খেলছিল, তারা 7টা থেকে খেলছিল, वे लोग सुबह से खेल रहे थे, वे लोग 7 बजे से खेल रहे थे, वे लोग 2 घंटे से खेल रहे थे।
सिंपली कुछ नहीं करना है, कंटिन्यूअस जो भी टेंस है उसमें परफेक्ट टाइम जोड़ दो, सो ऑटोमेटिकली द वर्क विल बी कन्वर्टेड इनटू परफेक्ट कंटिन्यूअस, और तब उसको इज आर एम के जगह हैव बीन का यूज करना है। हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग इंग्लिश। हम लोग 2 महीने से इंग्लिश सीख रहे हैं, 3 महीने से इंग्लिश सीख रहे हैं, 6 महीने से इंग्लिश सीख रहे हैं, 15 दिन से इंग्लिश सीख रहे हैं, 1 घंटे से इंग्लिश सीख रहे हैं, तो वी आर लर्निंग वहां गलत हो जाएगा। देन वी हैव बीन लर्निंग। बोलो जी, यहां तक क्लियर है? सो इज आई एम विल बी कन्वर्टेड इनटू हैज बीन, हैव बीन। was verb will be converted into had been, and then future में जहां shall be will be ing करते थे, future continuous, वहां पर shall will have been ing। she will be playing football, she will be playing football since morning, she will be playing football since morning, she will be playing football ঠিক আছে, কিন্তু যে সময় আমরা since morning করে দিচ্ছি তাহলে she will be playing যাচ্ছে কনভার্ট হয়ে যাবে ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস, she will have been playing football since morning। बस कंटिन्यूअस में अगर एक टाइम अगर जोड़ दो कि कंटिन्यूअस चल रहा है, चल रहा था भाई कब से, देन ऑटोमेटिकली कंटिन्यूअस विल बी कन्वर्टेड इनटू परफेक्ट कंटिन्यूअस। बस इतना ही, और कुछ नहीं है, कंसेप्ट समझना है। यस मो साहब बोलो। कल मंडे से हम लोग मंडे से पढ़ रहे हैं। यस, अगर सिंपल बोलोगे हम लोग पढ़ रहे हैं वी आर लर्निंग, और मंडे से पढ़ रहे हैं वी हैव बीन लर्निंग, तब वी आर लर्निंग गलत हो जाएगा। अब मंडे से क्या देंगे, अब इसके बाद बात करेंगे। यहां तक अगर क्लियर हो गया तो से के लिए सिंस कब देंगे, फो कब देंगे, ये अब बात करते हैं। यहां तक क्लियर है? यस सर। और फाइनली अब लोग सिंस और फो के यूज के लिए एक छोटा सा मैं पिक्चर बनाता हूं, मॉडर्न आर्ट है जी, समझ लेना। दिस इज अ बॉ, यह एक धनुष है। एक होगा कोई भी धनुष का एक किनारा, हम टाइम के लिए मींस स्टार्टिंग टाइम हम दिखला दे। भाई इंग्लिश सीख रहे हो, कब से सीख रहे हो, तो बोलोगे 7 PM से सीख रहे हो। और अभी कितना हो गया, 7:30 PM। अभी मान लो थोड़ा पीछे है लेकिन फिर भी मान लो 7:30 PM। तो अगर तुम्हें बोलना है कि हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं तो 2 तरीका है तुम्हारा बोलने का। नंबर 1 बोल सकते हो हम लोग 7 बजे से इंग्लिश सीख रहे हैं, या दूसरा पूरा कैलकुलेट करके, धनुष को पूरा कैलकुलेट करके एक किनारा बोल सकते हो, या पूरा कैलकुलेट करके बोल सकते हो हम लोग 30 मिनट से, या हम लोग आधे घंटे से इंग्लिश सीख रहे हैं। यह 2 तरीका होता है, और कोई तीसरा तरीका नहीं है टाइम को इंडिकेट करने का। या तो स्टार्टिंग का बोल दो, धनुष का एक किनारा बोल दो, या तो पूरा धनुष को कैलकुलेट करके बोल दो। 2 तरीका होता है। What is the day is it? आज कौन सा दिन है जी? सैटरडे। सैटरडे आज है, और कोई काम तुम वेंसडे से कर रहे हो। मान लो कोलकाता में रह रहे हो वेंसडे से, या कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वेंसडे से, या कोई भी काम कर रहे हो वेंसडे से, तो 2 तरीका है बोलने का। या तो बोल सकते हो मैं यह काम वेंसडे से कर रहा हूं, या पूरा कैलकुलेट करके क्या बोल सकते हो जी, मैं यह काम कब से कर रहा हूं, वेंसडे मीन्स फ्राइडे सैटरडे, 3 डेज। तो दूसरा तरीका है बोल सकते हो कि मैं यह काम 3 दिनों से कर रहा हूं, मैं यह काम 3 दिनों से कर रहा हूं। नाउ दिस इज द मंथ ऑफ सितंबर। मान लो तुम्हारे स्पोकन इंग्लिश अगर तुमने शुरू किया जून, तो बोल सकते हो मैं स्पोकन इंग्लिश का क्लास जून से कर रहा हूं, मैं स्पोकन इंग्लिश का क्लास जून से कर रहा हूं। या कैलकुलेट करके बोल सकते हो जुलाई अगस्त सितंबर,
3 3 months. months. या तो बोल सकते हो कि मैं स्पोकन इंग्लिश का क्लास जून से कर रही हूं, या बोल सकते हो मैं स्पोकन इंग्लिश का क्लास 3 मंथ से कर रहा हूं। यही दो तरीका, और कोई तीसरा तरीका बोलने का नहीं है। व्हाट इज द ईयर इज इट? कौन सा ईयर है जी? 2020। आसनसोल में कब से रह रहे हो? या तो चाइल्डहुड, बचपन से बोल दो, या तो 2005, 2010, जो भी है वहां से बोल दो। तो या तो स्टार्टिंग बोल सकते हो, या फिर कैलकुलेट करके बोल सकते हो मैं 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से, 25 साल से आसनसोल में रह रहा हूं, ये इस जगह पर रह रहा हूं। मतलब एक तरीका है धनुष का एक किनारा तुम इंडिकेट कर रहे हो, मतलब स्टार्टिंग टाइम, और दूसरा तरीका है टोटल कैलकुलेट करके तुम इंडिकेट कर रहे हो। यह दो तरीका है टाइम को इंडिकेट करने का। सो जब धनुष का एक किनारा कैलकुलेट कर, धनुष का एक किनारा जब बोलोगे देन सिंस इज यूज्ड, और जब पूरा धनुष को कैलकुलेट करके बोलोगे देन फो इज यूज्ड। अगर यह कंसेप्ट याद कर लोगे तो सिंस या फो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। सिंस या फो में कभी भी कोई भी मिस्टेक नहीं होगा। अगर यह कंसेप्ट क्लियर कर लेते हो, इसको पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम भी कर सकते हो, लेकिन उससे कंफ्यूजन होता है। तो अगर यह पिक्चर दिमाग में रखोगे, अगर यह कंसेप्ट अच्छे से समझ जाओगे, तो सिंस या फो में कोई भी मिस्टेक नहीं होगा, कभी भी कोई भी मिस्टेक नहीं करोगे सिंस या फो। अब फाइनली आते हैं, दीपक सर इज टीचिंग अस। दीपक सर इज टीचिंग अस मीन्स नाउ एट प्रेजेंट दीपक सर इज टीचिंग अस। लेकिन अगर बोलोगे 7 बजे से पढ़ा रहे हैं, देन कंटिन्यूअस विल बी कन्वर्टेड इनटू परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि एक परफेक्ट टाइम इंडिकेट कर रहे हो। दीपक सर हैज बीन टीचिंग अस क्या सिंस 7, स्टार्टिंग बोल रहे सिंस 7 PM, या बोल सकते हो दीपक सर हैज बीन टीचिंग अस फॉर हाफ एन आवर फॉर 30 मिनट्स। যদি মানে আমি 7টা থেকে 7:30 পড়াচ্ছেন এটা বলতে No, 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 no. That is for indefinite. I study from 7 to 7:30. কিন্তু তোমার কাজ কন্টিনিউ চলছে, চলছিল কখন থেকে? তাহলে বলতে পারবো না অটো কাটে গৌতম না, কখন থেকে, कब से, कितने समय से। यह होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। I study from 7 to 8 हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, from 7 to 8। लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या हुआ? कंटिन्यू चल रहा है, यह दिखलाना होगा। आई एम स्टडिंग नाउ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसको जोड़ दो। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 6 PM। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। I have been living in Asansol since childhood. I have been living in Asansol since 2005, since 2010. I have been living in Asansol for 5 years, for 10 years, for 20 years, for 25 years. Starting धनुष का एक किनारा since, पूरा धनुष for, धनुष का एक किनारा since, पूरा धनुष for। अगर यह कंसेप्ट दिमाग में सेट करोगे तो सिंस और फो में कभी भी कोई भी मिस्टेक नहीं होगा। হ্যালো স্যার। হ্যাঁ বলো। স্যার আমি যদি বাংলায় এরকম বলি যে টুয়েসডে দীপক স্যারের ক্লাস 7টা থেকে 8টা পর্যন্ত চলবে। यस, ভালো করে বুঝো। চলবে মানে ফিউচার ইনডেফিনিট। We are not talking about indefinite, we are talking about continuous। তাহলে চলবে, তাহলে ফিউচার বলো। দীপক স্যার ক্লাস will continue from this time to this time। বা চলে বা চললো, इंडेफिनिट, वो कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस कोई काम चल रहा है, चल रहा था, चल रहा होगा।
कंटिन्यूअस। और वो स्टार्टिंग टाइम बोलना, इतना बजे से इतना बजे तक नहीं बोलना, वो स्टार्टिंग टाइम बोलना है, कितने बजे से कितने समय से यह बतलाना, इतने समय से इतने समय तक वह नहीं बतलाना। কত টাইম থেকে কত টাইম পরে कंटिन्यू चलছে चलছিল। क्लियर है? चलो एक चीज थोड़ा सा और समझ लो, कभी कभी क्या होगा कि टाइम जो है वह हिडन रहेगा। जैसे मान लो एक एग्जांपल अगर मैं दूं, आई एम इन XYZ कंपनी। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में तुम काम कर रहे हो और तुम्हें बोलना है कि मैं इस कंपनी में हूं, तो सिंपली क्या बोल सकते हो, आई एम इन दिस कंपनी। सो आई एम इन XYZ कंपनी, আমি এই কোম্পানিতে আছি, मैं इस कंपनी में हूं, तो सिंपली क्या लग रहा है, आई एम इन दिस कंपनी। लेकिन if we talk about perfect grammar, this is wrong, because I am in this company, maybe you are not working there, you have gone for another work, कोई दूसरा काम के लिए वहां गए और उस कंपनी में हो, तो बोल सकते हैं आई एम इन दिस कंपनी। लेकिन क्योंकि तुम वहां काम कर रहे हो, केवल उसी समय को नहीं बतलाना, पास्ट से लेके प्रेजेंट को कनेक्ट करना। सो आई एम इन दिस कंपनी से अच्छा रहेगा आई हैव बीन। अब यहां पर सिंस या फोर नहीं है, फिर भी यहां पर तुमको इज आर एम की जगह हैव बीन का यूज करना होगा। आई हैव बीन इन दिस कंपनी, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी। वहां सिंस या फोर नहीं, फिर भी सिंस है कि स्टार्टिंग से लेके अभी तक कंटिन्यू चलते हैं। अगर बाहर में खड़े हो तो यह नहीं बोल सकते वी आर लर्निंग इंग्लिश एट ASP, क्योंकि बाहर में खड़े हो। लेकिन तुम क्या बोलना चाह रहे हो किसी को, वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश एट ASP। 2 महीने से, 3 महीने, 4 महीने से वह हिडन है। बट आई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आई एम वर्किंग इन दिस कंपनी एंड आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी? I am working in this company মানে only present time এর জন্য বলছি, ঠিক আছে, মানে একদম প্রেজেন্টে এই কাজ করছি আমি। কিন্তু যদি করছো তাহলে তুমি কি দেখাতে চাও, এই কোম্পানিতে তুমি কাজ করো, এই জিনিসটা তুমি দেখাতে চাও। তাহলে আই হ্যাভ বিন যদি দাও, তাহলে ভালোভাবে তুমি এক্সপ্লেইন করতে পারো। হয়তো সেই কোম্পানিতে কাজ করো না, 1 ঘন্টার জন্য কিছু জন্য গিয়েছো, না আই এম ওয়ার্কিং হিয়ার, না আই এম ইন দিস কোম্পানি, কিছু অন্য কাজ জন্য গিয়েছো, আই এম ইন দিস কোম্পানি। কিন্তু যদি কাজ করছো তাহলে শুধু প্রেজেন্টের জিনিস বলতে হবে না, পাস্ট থেকে প্রেজেন্ট পর্যন্ত কানেক্ট করে দিতে হবে। আই হ্যাভ বিন ওয়ার্কিং ইন দিস কোম্পানি, আই হ্যাভ বিন ইন দিস কোম্পানি। After completing the assignment, whatever the doubts are there, your doubts will come to an end, number 1. And after that, a lot of examinations will also be taken.